हाय, सो इस वीडियो से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग प्लेलिस्ट को। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक टू टॉपिक्स व्हिच आर वेरी सिंपल but they'll help you to understand the concept of strings and how to manipulate them. So let's start. So before moving forward, let me tell you about Newton School's Grand Coding Contest, which is being held on 27th of August. So let me just tell you about what this is and how can you benefit the most out of it. So let's see. This is a coding competition wherein you get to participate and compete with the entire coding community in India. You also get a chance to win exciting cash rewards as well as goodies up to worth rupees 5 lakh rupees. The major benefit of participation is that you get a chance to get internships as well as job opportunities if you stand out in the coding competition. सिर्फ इतना ही नहीं, you also get to win goodies like HomePad Mini, ergonomic keypad and mouses, Amazon Echo, and here is the entire list of cash rewards which you can get if you come first, second, third, fourth or fifth. सिर्फ इतना ही नहीं, the best part is they also have special prizes for best female coder, the youngest coder who solve at least one problem, the best ranked working professional, the first solver on every problem. So as you can see, there are multiple unique ways in which you can get prizes. Now let's see how can I register for this coding competition. So it's very simple. You just have to click on this join now button. Once you click on this thing, it will redirect you to the landing page of the contest. So here we are. अब आपको क्या करना है? If you do not have an account with Newton School, the first thing you need to do is you need to create an account to sign up for the page. I have already logged in, so it's not asking me to sign up. But अगर आपका account नहीं है Newton School के साथ, तो you have to create a new account with this. Once you do that, you will be coming up on this page. So what you need to do now is you just have to fill up this small form to participate in the coding competition. So let me show you how. So let's say I'm typing my college name and here it comes, SRM University. Let me choose my stream, so it's CSC. Let me choose my passing out year, which is 2016, and then you can choose how did you get to know about Newton School. So आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी option choose कर सकते हैं. Let's say I am choosing the first option and then I click on submit. So once you click on submit, it says that application for the Newton's Grand Coding Competition for 2021 has been successfully applied. So आप यहाँ पे click कर सकते हैं. And as you can see, it shows that it starts in 10 days. So definitely give a shot to this coding competition. As such, contest will just help you to evaluate your coding skills and help you to understand where do you lag and what else needs to be improved. So I hope by participating in this contest, you'll be learning as well as exploring the world of coding. So the first problem is to convert a given character in a string into lowercase. ये काफ़ी simple problem है, but I'm taking this as the first problem just to illustrate कैसे हम किसी भी कैरेक्टर को लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी नाउ. इमेजिन कीजिए हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है विच इज ऑल कैप्स. इट नीड नॉट बी सो, बट हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपिटल्स हो सकते हैं. एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट दीज कैपिटल लेटर्स इनटू स्मॉलर केस, राइट. सो हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, अरुण सिंह. सो नाउ जस्ट पे अटेंशन हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम. सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो बॉयलरप्लेट कोड है वो लिख रखा है. सो आई एम एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग and then I'm calling out two lowercase function. यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक temporary string create कर लूँगा. So I'll have this thing as my answer string. अब मैं क्या करना चाहूँगा, and this is what I'll return also in the end. So ये मेरा answer string हो गया. Now what else? आइडिया बहुत ही सिंपल सा है. हम क्या करेंगे ना, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को आइटरेट करने वाले हैं. So how we are going to do that is by using a for each loop. So this is my for each loop. ये क्या कर रहा है बेसिकली, ओवर दिस स्ट्रिंग जो कि s है हमारा, हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसे पिक कर रहे हैं एंड वी आर स्टोरिंग इट इनटू द x वेरिएबल. ऑलराइट. सो दी अगर आप डेटा टाइप देखेंगे x का, इट इज अ कैरेक्टर. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन मैनिपुलेट दिस कैरेक्टर. कैसे कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज वी नीड टू चेक वेदर दिस इज एन अपर केस और अ लोअर केस. सो C++ हैज गॉट दिस इनबिल्ट लाइब्रेरीज कॉल्ड एज इज अपर. सो ये इज अपर करके एक लाइब्रेरी इनबिल्ट प्रेजेंट होती है विच चेक्स वेदर द कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट. आप इसे बिना लाइब्रेरी के भी कर सकते हैं, आई विल शो यू दैट आल्सो. ओके, बट अभी समझते हैं द सिंपलेस्ट वे. सो इज अपर ऑफ x. सो इफ दिस रिटर्न्स मी अ ट्रू वैल्यू, हमें क्या करना है, इस अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करना है. हाउ डू वी डू दैट, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज टू लोअर. सो मैंने यहाँ पे एक टू लोअर फंक्शन यूज किया है विच विल कन्वर्ट माई कैपिटल लेटर x इनटू अ स्मॉलर केस. और अब हम क्या करेंगे, इसे आंसर में अपेंड कर देंगे. सो आई विल यूज दिस प्लस इक्वल टू सिंबल
just to append to my resultant string. All right, तो ये तो हो गया for the upper case. So for example, I'm scanning through my string, और जब भी मुझे एक upper character मिलेगा, that will pass my if condition, and once it passes this if condition, I'm converting into a lower case. एक बार ये हो गया, what else? What about the lower characters? उनका क्या करेंगे? उनको हम as it is append कर देंगे string से. So I'll write an else condition here this way. So else condition सिर्फ simply क्या कर रहा है, x को append करते जा रहा है resultant string से. Once we do this, we get the answer. So हमारा जो answer variable होगा, that will store the resultant answer. Now let's try to run this and see the answer. As you can see, we get the answer as Arun Singh. Now let's take something mix of both. जैसे कि now as you can see, everything is in lower case. अब ये तो हो गया normal approach where we are making use of this inbuilt library functions. But अगर यही बताना होता तो मैं ये वीडियो क्यों बनाता? My primary objective here is to tell you what happens under the hood of these functions. All right. So इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ASCII टेबल को. So यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए ASCII टेबल खोल रखा है. So जिन्हें नहीं पता ना ये ASCII टेबल होता क्या है, let me just brief you about this. ASCII stands for American Standard Code of Information Interchange. As you can see on the screen, every character has got a integer value associated with it. For example, आपको मैं दिखाता हूँ. जैसे देखिए कैपिटल A जो है, as you can see here, कैपिटल A has got an integer value 65 associated with it. B के लिए 66 है. और अगर आप देखेंगे स्मॉल कैरेक्टर्स कहाँ से शुरू होते हैं, if you see this small a, it has an ASCII value of 97. All right. So कैपिटल B का 98 है एंड सो ऑन सो फोर्थ है. सो आप देखेंगे स्मॉल z को 122 का कैरेक्टर वैल्यू, 122 का न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड है. सो यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट एंड यू कैन सी दैट एवरी कैरेक्टर विच इज प्रिंटेबल, या आप बोल सकते हो जो भी कीबोर्ड पे अवेलेबल है ना, दे ऑल हैव गॉट एन यूनिक इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड विद इट. और इसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं ASCII टेबल. ऑल राइट, नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन. अब what if I tell you कि instead of using this to lower, how do I do things without using an inbuilt function? Let's try to understand this thing. If you observe, the ASCII value of small a is 97, whereas this ASCII value of capital A is 65. So if you do the math, you'll find that जो difference है इन दोनों के बीच का, it is of 32. जैसे बोलते हैं ना 32 दांत होते हैं, वैसे इनके बीच का डिफरेंस भी 32 है. So by this analogy you can remember this कि जो कैपिटल कैरेक्टर्स होते हैं A, B, C, D, उनके जो स्मॉलर वेरिएंट होते हैं ना, उनमें 32 का डिफरेंस होता है. Okay, so we are going to make use of this information to make this conversion. कैसे? Let's see that now. What I'll do is, मैंने ये x लिया ना, now if this x is a capital letter, what I need to do is, I just need to add a 32 to this number. क्यों? क्योंकि let's say my character is r. So जो capital R होगा ना और जो smaller r होगा, इनके बीच का जो difference होगा ना वो 32 का है. As I told you, ये आप ASCII टेबल से derive कर सकते हैं. All right. So this is the difference. सो अभी कन्वर्शन कैसे टेक प्लेस करती है, देखिए जब भी कंप्यूटर को हम कोई कैरेक्टर देते हैं एंड व्हेन यू ट्राई टू परफॉर्म सम न्यूमेरिक ऑपरेशन टू इट, तो कैरेक्टर से तो हम न्यूमेरिक परफॉर्म नहीं कर सकते, तो कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दोस कैरेक्टर्स इनटू देयर ASCII फॉर्म. ASCII फॉर्म क्या है, नंबर्स हैं. सो इफ लेट्स से इफ माय कैपिटल कैरेक्टर वाज A, कैपिटल A, तो वो 65 होगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू. सो 65 में अब वो 32 ऐड करने वाला है. सो वंस दैट 32 इज एडेड, इट बिकम्स स्मॉलर a, राइट. So ये जो है small a बन जाता है यहाँ पे. So this becomes small a if assuming that this x is a capital A. Okay. So now but we want to store this thing into a string data type, right? अगर मैं इसको ऐसे रन करूँगा तो I'll get a compiler issue. That's a compile time issue आ जाएगा मुझे. क्यों आएगा? Let's see that. Okay. यहाँ पे नहीं आया मुझे compile time issue. ये इसलिए नहीं आया because the compiler is smart enough to convert the numeric value back to a character value. ठीक है. सो ये जो ASCII वैल्यू कन्वर्शन होता है ना, कैरेक्टर टू ASCII वैल्यू एंड ASCII टू कैरेक्टर वैल्यू, दिस इज ऑल डन बाय द कंपाइलर वेरी इंटेलिजेंटली. सो यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं आया है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हर कंपाइलर में हो सके, बिकॉज द कंपाइलर वर्जन व्हिच आई एम यूजिंग इज GCC 9.2. हो सकते हैं पुराने कंपाइलर्स में ये कंपाइल टाइम इशू आ जाए. इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, टू बी वेरी श्योर, आई कैन जस्ट टाइपकास्ट दिस थिंग इनटू अ कैरेक्टर टाइप. नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस अगेन, विल गेट द करेक्ट आउटपुट. हमें कोई इशू नहीं आएगा. लेट्स आई जस्ट टाइप अरुण सिंह. So as you can see, the first three characters are capital letters and I get the correct output. So I would recommend you to write this way rather just relying on the compiler to do the implicit conversion. आप ये लिखना ज़्यादा सही होगा. Fine.
अगर मुझे इसे समराइज करना हो इस पूरे प्रॉब्लम को, द मेन ऑब्जेक्टिव टू टीच यू इन दिस प्रॉब्लम was to understand the relationship between capital characters and the smaller characters, जो कि 32 का होता है, which you can get from the ASCII table. So using this property you can do a lot of operations without using the inbuilt library also. Alright, so let's move to the next problem. So ये इस वीडियो का सेकंड प्रॉब्लम होने वाला है, which will help us in understanding a bit more about strings and their manipulations. चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं पहले. So ये प्रॉब्लम मैंने लीड कोड से ली है, and as you can see this problem is marked as easy. Alright, and इसे काफ़ी अच्छा लाइक टू डिसलाइक रेशियो भी मिला, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड आई हैव चोजन दिस प्रॉब्लम वेरी डेलिबरेटली ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूँ हाउ टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर. तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं. द प्रॉब्लम सेज इज चेक इफ द सेंटेंस इज अ पैनाग्राम. सो यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट दिस प्रॉब्लम वांट्स अस टू डू. बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दी होगी, तो अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को चेक करना है whether this is a panagram or not. So what is a panagram? Panagram is a string wherein it has got all the 26 characters present into it. ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें अगर आप काउंट करेंगे all the characters are there present in this. So duplication of characters is allowed. जैसे यहाँ पे दिया भी है, sentence contains at least one of every letter of the English alphabet. Fine. So all the characters are present. So therefore this is returned as true. एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है लीड कोड. So this is returning false because it doesn't has all the characters present into it. So अब इसे कैसे अप्रोच करेंगे? Let's see that now. Idea कैसा है? What we need to do is we need to keep a check or we need to make a keep of count of all the characters present in the given string. और अगर उस सारे characters 26 characters के बराबर है of the English alphabet, then we can say that this is a panagram. Fine. पर ये करेंगे कैसे? देखिए एक आइडिया आपके दिमाग में ये आ सकता है ना, आई कैन मेक यूज ऑफ अ हैश टेबल. सो हैश टेबल में क्या करेंगे, एज वी आइटरेट थ्रू दिस स्ट्रिंग व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक दिस कैरेक्टर्स एंड वी कैन पुट देम इनटू द हैश टेबल. अब जब हम इसे हैश टेबल में डालेंगे विल ऑल्सो कीप देयर फ्रीक्वेंसी और काउंट इनटू द हैश टेबल. सो व्हाइल ट्रैवर्सिंग दिस स्ट्रिंग, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, फाइन, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट स्टोरिंग एवरी कैरेक्टर इन अ हैश टेबल. सो दिस इज माई हैश टेबल और मैं सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहा हूँ. फाइन. सो हमारा हैश टेबल कैसे दिखता है, इस तरह से कुछ दिखता है, राइट. सो आई एम स्टोरिंग द कैरेक्टर एंड एज वेल एज देयर काउंट. ठीक है, तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर को एनकाउंटर करूंगा आई कीप दिस काउंट वैल्यू. अगर मैंने किसी कैरेक्टर को दोबारा देखा आई जस्ट अपडेट दिस काउंट वैल्यू टू 2. जैसे मैंने बी को देखा 3 बार देख लिया, तो मैंने उसके काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 3 टाइम्स से. इस तरह से हम सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेंगे. एंड इन द एंड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली ट्रैवर्स दिस हैश टेबल जस्ट टू चेक वेदर आई एम मिसिंग आउट एनी कैरेक्टर इन दिस और नॉट. ठीक है, this could be one approach, but there is an easier approach, and this is where I'll teach you the new concept. What we can do is instead of using a hash table, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हैश टेबल जो है ना बहुत ही बल्कि डेटा स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ दिस हैशिंग एंड देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लोड बैलेंसिंग. सो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं हैशिंग में अंडर द हुड. दो इट लुक्स वेरी सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, बट ये काफी बल्कि डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है टू परफॉर्म सच सिंपल टास्क. सो ऐसे सिंपल टास्क के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन हैश टेबल व्हाट वी कैन मेक यूज ऑफ इज अ सिंपल अरे. कैसे? Let's see that now. The idea is to have a array of 26 length. Why 26 length? Because question में दिया हुआ है कि हमारा जो characters होने वाले हैं they are going to be the smaller case of alphabets. So from small a to small z जो है हमारा character set होने वाला है, and therefore since this is already given to us हम क्या करेंगे ना 26 का एक array बना लेंगे and we'll just initialize it to 0. So initial सारी values 0 हैं and I've created an array wherein this is the final index of this array, this is the starting index of the array. Alright. अब how do we store all these characters into this array? यहीं पे ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है. Now let's take an example to see how this is going to work. So मेरे पास एक string है, let's say मेरा नाम ले लेते हैं अरुण. Right? This is a string. सब कुछ लोअर केस में है. Now let's see. जब मैंने आइटरेट किया स्ट्रिंग को तो आई एनकाउंटर्ड स्मॉल a. Now I know कि द ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल a is 97. ये हमने पढ़ा अभी पिछले क्वेश्चन को ही देखा तो हमें समझ में आया कि ओके ASCII वैल्यू होती है हर कैरेक्टर की. सो फॉर स्मॉल a वी हैव 97 एज द ASCII वैल्यू. अब मैं क्या करूँगा ना, इस ASCII वैल्यू में से आई विल सब्ट्रैक्ट कैरेक्टर a इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हुआ, अगेन दिस इज नथिंग बट द ASCII वैल्यू, राइट.
क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि whenever we perform any arithmetic operation on characters or strings, तो कंपाइलर क्या करता है, उनको उसकी इनके ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है because those are numbers and then it performs the operation on it. ठीक है, so by writing this step, ये जो लिखने से क्या होता है ना, now 97 minus 97 क्या होगा, it will become 0. Therefore what I'll do is I'll take this result as my index and then I'll get into that index in the array and I'll store the count of that character. मतलब सी, जब मैंने ये इस कैरेक्टर को एनकाउंटर किया, मैं क्या कर रहा हूँ ना, कैरेक्टर ए माइनस कर रहा हूँ इससे. व्हाट दिस डज इज इंटरनली इट गिव्स मी अ रिलेटिव पोजीशन फॉर दिस कैरेक्टर ए इन दिस अरे. फाइन, सो लेट्स से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा विजुलाइज करने को. अगर मैं इसे एक्सटेंड करता 0 से लेके, क्योंकि ASCII वैल्यू जो है ना 128 तक जाती है. नाउ लेट्स से यहाँ पे कहीं जाके हमारा 97th कैरेक्टर था विच इज नथिंग बट ए. फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ए को ए से माइनस कर रहा हूँ. ठीक है, इससे क्या होता है ना, दिस ए गेट्स शिफ्टेड टूवर्ड्स 0. फाइन, सो अब क्या हो रहा है ना, दिस ए इज बेस, तो ये जो 0th इंडेक्स है ना इन दिस अरे, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए, स्मॉल ए. सिमिलरली इफ आई टेक दिस इंडेक्स 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेट्स सी दैट नाउ. सी देखिए, अगर मैं बी को लूँ, बी का ASCII वैल्यू कितना है 98. अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ कैरेक्टर ए को विच इज नथिंग बट 97, सब्ट्रैक्शन हो गया. सो व्हाट डज दिस इज यील्ड, दिस गिव्स मी एन 1. इसका मतलब ये जो इंडेक्स 1 है ना, ये पोजीशन ना बी को इंडिकेट कर रही है. इट एक्ट एज अ पोजीशन फॉर बी इन दिस अरे. सो एज यू कैन सी दिस सिंपल मैथ्स इज ऑल्सो वर्किंग वेल फॉर अस. अब देखते हैं सी के लिए, क्या ये 2 है, क्या ये इंडेक्स 2 सी को रिप्रेजेंट कर पा रहा है. लेट्स सी दैट नाउ. सी कितना होगा 99, 99 माइनस 97 कितना होगा, इट विल बी 2. एज यू कैन सी 2 रिप्रेजेंट सी. और इस तरह से अगर आप देखेंगे, जी को ये 25th जो लोकेशन है वो इंडिकेट कर रही है. सो दिस शुड बी, ये जो हो गया ना, ये जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट, तो ये सारे कैरेक्टर्स थे जिनके हमें पोजिशनल वैल्यू मिल गई इस अरे में. सो दिस इज हाउ वी गेट द पोजिशनल वैल्यू फॉर दीज कैरेक्टर्स इन द अरे. ऑलराइट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई जस्ट रीआइटरेट वंस अगेन. मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, सी ये जो एक्सप्रेशन है, लेट्स से दिस सी रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर माइनस दिस थिंग. ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये एक्सप्रेशन हमें क्या यील्ड करता है, ये हमें देता है बेसिकली द पोजिशनल वैल्यू इनसाइड द अरे. विच अरे, दिस अरे. इस अरे में हमें पोजिशनल वैल्यू देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सी जो है, this C is the character, right? So it is holding a character value. Let's say ये hold करता है हमारे लिए A को. So A minus A करने पे हमें 0 आता. So जब भी मैं इस इंडेक्स को एक्सेस करूँगा, I can say that ये जो है ना A को रिप्रेजेंट कर रहा है. This position और this index represents B. This to C. ठीक है, अब हम यहाँ क्या स्टोर करेंगे, हम यहाँ पे स्टोर करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी और द काउंट और द नंबर ऑफ टाइम्स दिस कैरेक्टर्स हैज अकर्ड. फॉर एग्जांपल, मेरा जो स्ट्रिंग होता ना वो होता ARUNA, फिर से होता. सो मैं A पे जाता तो मैं यहाँ पे स्टोर करता 1, क्योंकि मैंने एक बार A को एनकाउंटर किया. फिर मैं R पे जाता तो फिर मैं R की भी वैल्यू को कहीं ना कहीं जाके इंक्रीमेंट करता, U को भी इंक्रीमेंट करता, N को भी इंक्रीमेंट करता, और दोबारा जब A पे आता तो अगेन आई वुड हैव इंक्रीमेंटेड दिस पोजिशन प्लेस टू 2. तो ये जो पोजिशन होती है ना, ये हो जाती है हमारी अब 2. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, और बाकी सब 0 रह जाते हैं. फाइन, तो इस तरह से क्या होता है, आफ्टर आइटरेटिंग थ्रू दिस स्ट्रिंग, मेरा ये जो एरे होगा ना, ये कंप्लीटली पॉपुलेट हो जाएगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर विच हैज अकर्ड इन दिस स्ट्रिंग. ठीक है, वंस आई हैव दिस थिंग, आई कैन जस्ट सिंपली रीआइटरेट ओवर दिस अरे एंड चेक वेदर ऑल माई वैल्यूज आर मार्क्ड एटलीस्ट 1. अगर कोई भी वैल्यू 0 रह गई ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये वैल्यू 0 रह जाती, ठीक है, ये 0 के 0 रह जाती है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कैरेक्टर है दिस हैज नेवर अकर्ड. और हम सिंपली डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना, ये सारे कैरेक्टर्स को होल्ड नहीं करता, देयरफॉर इट्स नॉट अ पैनाग्राम. सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया होगा तो आपको ये कोड देख के जरूर समझ में आ जाएगा. लेट्स सी दिस थिंग. सो मेरा अप्रोच क्या है, आई डिक्लेयर अ अरे ऑफ साइज 26 और मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से. सो मैंने यहाँ पे अपना कोड लिखना खत्म कर लिया है. नाउ लेट्स सी, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर ईच लूप रन कर रहा हूँ wherein I'm iterating over each and every character. Now using this statement I'm trying to index into the array which I've declared here. Fine, जैसे मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था. And now what I'm doing is I'm also incrementing the value. That is, this is what I'm trying to do wherein I'm trying to increment the frequency.
और साथ साथ में while I am incrementing the frequency I am also making a check whether it is equal to 1 or not. If it is equal to 1 तो मैं क्या कर रहा हूँ उसे टोटल में इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ. So with this क्या हो रहा है, टोटल is keeping the count of each and every character has occurred or not. Finally अगर टोटल जो 26 के बराबर है तो I can say that all the characters in the alphabet are present else they are not. तो हम true or false इसके बेसिस पे रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, हो सकता है कि a particular character has occurred more than once एंड कोई कैरेक्टर मिस कर गया हो, तो इसमें भी तो टोटल जो है 26 से ज़्यादा हो सकता है ना. इसीलिए हम यहाँ पे एक चेक कर रहे हैं वेदर इट इज इक्वल टू 1 और नॉट. दैट इज अ कैरेक्टर हैज़ टू अकर एटलीस्ट वंस. सो दिस विल कीप अ चेक ऑन दैट. एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, अगर कैरेक्टर ज़्यादा हो जा रहे हैं तभी एक टोटल जो है ना 26 से बड़ी हो जाएगी. एंड देयरफॉर अगेन इट इज सो इट्स नॉट अ पैनाग्राम. सो आई होप आपको ये समझ में आई होगी. लेट मी शो यू द रिजल्ट फॉर दिस एग्जाम्पल. इफ आई रन द आउटपुट फॉर दिस एग्जाम्पल आई गेट 1 ओवर हियर. इफ आई यूज अनदर कैरेक्टर लेट्स से न्यूटन स्कूल, दो यहाँ पे जो O है वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है बट नॉट ऑल द कैरेक्टर्स आर अकर्ड, देयरफॉर आई गेट 0 एज एन आउटपुट. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे और आपने कुछ जेन्युइनली नया कुछ सीखा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी गेट्स बेनिफिटेड. बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो लेट मी टॉक अबाउट न्यूटन स्कूल्स लॉन्चपैड. ये एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू गेट ऑल दीज 5 बेनिफिट्स. सो न्यूटन स्कूल जो है वो आपको जॉब रेडी बनाता है बिकॉज ऑल द कोर्सेज आर इंडस्ट्री रेलेवेंट और कोई फालतू की चीज़ नहीं है यहाँ पे. इट इज़ अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट अंटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस्ड विद अ मिनिमम ऑफ 5 लाख CTC. इट इज़ अ सेल्फ पेस्ड कोर्स. आप अपनी स्पीड से और अपने मन मुताबिक पढ़ सकते हैं. सो इट रिक्वायर्स 0 सेटअप. व्हाट डज इट मीन? मतलब आपको ना कोई कोड स्टूडियो इंस्टॉल करने की जरूरत है ना कोई IDE. सब कुछ इनके ब्राउजर प्लगइन के थ्रू आप वेब में ही एक्सेस कर सकते हैं. सो इट मेक्स थिंग्स वेरी हैसल फ्री. दे हैव गॉट डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म. For every video or every concept which you learn on the platform, you have a doubt solving. So you can post a doubt there and the experts will get back in touch with you within 24 hours and clear all your doubts. So